Good afternoon, students. This is Saboni Thara, and again, I'm going to continue the continuation part of the yesterday's lecture. So, yesterday we have saw about meaning of corporate finance, but today we will going to see the definition of corporate finance. So, what it is exactly, I just show you. So, definition of corporate finance means, according to Professor Henry Hoagland, states that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. It means the Professor Henry Hoagland states that corporate finance means corporate finance is deals with the acquisition to acquire. It means what? To acquire something, okay, and to use the capital by the business corporation, by the business firms, by the investors in the business. So those are called as what? Nothing but the corporate finance. So corporate finance, it is the acquisition of taking place of the assets of all the things and of the use of the capital in a proper way, in a systematic way. So those are called as what? Corporate finance. So this is it. Now we will going to see the next part, the explanation of this definition. That is, the term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market and share market. So it not only called money and money value or investment or management of the money, बट इट ऑल्सो डील्स विद द कॉरपोरेट फाइनेंस. ये कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर ही फिनेंशियल प्लानिंग होता है, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है और साथ ही साथ में शेयर मार्केट भी होता है. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़िनेंशियल प्लानिंग क्या होता है. फ़िनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, कहाँ पे आपको डिपॉजिट रखना है या लेना है. सो इसको बोला जाता है फिनेंशियल प्लानिंग. स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब है, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स का लेन देन होता है, ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, लाइक ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? ट्रेडिंग मीन्स सेलिंग एंड परचेस ऑफ selling and purchases of the shares, debentures, etc. is known as what? Capital. The market where these all things is happening is called as capital market. And money market and share market. Market is also known as financial market. And share market जहाँ पे शेयर बेचा जाता है, लिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. So these all are called as corporate finance. Corporate finance include all those things. Next, the B point, it also covers capital formation. So it also covers what? Capital formation and foreign capital. ओके, किस तरह से कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और साथ ही साथ में फॉरेन कैपिटल भी इसके हिसाब से कवर हो सकता है कॉरपोरेट फाइनेंस से. Next one is, even financial organizations and banks plays a vital role in corporate finance. So corporate finance, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था in the lecture previously, कि मुझे अगर कोई भी बिज़नेस सेटअप करना है तो वो बिज़नेस सेटअप करने के लिए मुझे बहुत ह्यूज फाइनेंस की ज़रूरत होती है. लाइक नॉट इन द लैक्स, इट शुड बी इन द क्रोर्स. अगर अच्छा खासा बिज़नेस अगर सेटअप करना है, हाँ, बिज़नेस कोई भी साइज़ का हो सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी कि बड़ा ही सेटअप करना है. लेकिन इफ़ आई विश तो उसमें से 75% मेरा शेयर्स तो रहेगा ही, क्योंकि मेरा सेटअप है तो मेरा फाइनेंस ज़्यादा रहेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे 25% की ज़रूरत और पड़ती है, ठीक है, सो मैं कहाँ पे जाऊँगी? मैं अपने फ्रेंड्स को पूछूँगी, रिलेटिव्स को पूछूंगी, लेकिन बड़े बड़े फंड्स उन लोग भी नहीं दे पाएंगे. और कौन से बेसिस में हम लोग को अश्योरिटी करके देंगे कि नहीं, हम लोग आज ले रहे तो कल हम लोग दे देंगे. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स में जाते हैं और वहाँ से हम लोग लोन वगैरह लेते हैं, ताकि हम लोग का जो सेटअप है उस हिसाब से सेटअप किया जाए. ओके, सो दिस इज़ ऑल 3 points of the definition explanation. Now we will going to see the
next. So now this is the another point wherein it is stating that the finance manager of any corporate has to ensure that, मतलब कोई भी फाइनेंस मैनेजर है तो वो कोई भी कॉरपोरेशन के हो सकते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें एश्योरिटी देना है कि द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस। मतलब कोई भी फर्म है जो रन कर रहा है उसको एडिक्वेट फाइनेंस की बहुत ज़रूरत मतलब रहनी चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंस होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब एकदम एग्जैक्ट सोर्स ऑफ फंड्स आप यूज़ कर रहे हैं। दे मस्ट हैव मिनिमम कॉस्ट, मतलब उसका जो कॉस्ट वैल्यू है, मतलब जिसको बोला जाता है खर्चा, वो बहुत ही कम है। द फर्म यूटिलाइजेज रेज्ड फंड्स इफ़ेक्टिवली, जो कुछ भी आप फंड्स सामने वाले से ले रहे हो वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया जा रहा है, इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। And the fourth one, they are generating maximum return for its owner. So they are what? Generating maximum returns. Returns का मतलब है प्रॉफिट निकालना ओनर्स के लिए। ठीक है, ओनर्स कौन होते हैं? द शेयर होल्डर्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, so that is it. Now we will going to see the next sliding. See, the corporate finance is basically divided into two parts. Number first one is called as financing decision, and the another one is called as investment decision. So financing decision का मतलब क्या होता है? I just tell you. See, corporate finance is divided into two parts, that is financing decision and the next one is investment decision. बच्चों ये एडवाइस देती हूँ कि जब भी आप कोई भी पेपर वगैरह लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो तभी अगर आप थोड़ा सा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाएंगे तो इट मे हैपन्स कि ये थोड़ा सा इम्प्रेशन बढ़ेगा आपके आंसर्स के रिलेटेड। आई नो इट इज़ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बट यू कैन ट्राई इट। अभी से अगर आप लोग ट्राई करेंगे इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। जैसे आप मेरा यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इस तरह से किया है तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट, देखने में कि कुछ अलग दिख रहा है, राइट। एंड द थिंग इज़ दैट ऑन दी अदर हैंड अगर आप दिखाएंगे, नो डाउट यू जो डोंट यूज़ एनी रेड पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, नथिंग लाइक दैट, you just need to do is what? Use your pencil and scale properly and make a circle with the help of the stencil and you can set up the things very easily. Okay, so it's just an advice. अगर जिसको भी करना है 85 या 87 के ऊपर स्कोर, 92 के ऊपर स्कोर, they can follow this particular thing. Okay, so now we will going to see what it is actually financing decision का मतलब क्या है। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जूम कर दिया है चीज़ें ताकि वो अच्छी तरह से आपको दिखे। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, द नेम इटसेल्फ सेइंग समथिंग रिलेटेड विद द डिसीजन। सो ऑफ कोर्स द डिसीजन विच इज़ टेकन फॉर द फाइनेंशियल पर्पस आर नोन एज व्हाट? फाइनेंसिंग डिसीजन. So the first point they are telling us that the business firm has access to capital market to fulfill its financial needs. So यहाँ पे ये बोला है कि बिजनेस फर्म जो है उनको एक्सेस होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट से वो अपने जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर सकें। अभी फाइनेंशियल नीड्स का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अगर चाहूँ एक कोई भी कंपनी सेटअप करना तो मैं 75% या 70% तक मैं अपना इन्वेस्टमेंट रखूँगी खुद से, लेकिन अगर मुझे 30% की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे मैं कैसे रेज़ करूँगी फंड्स? थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स in the market, and that market is called as capital market. Okay, so that market is called as what? Capital market. So ये first point यहाँ पे बोला गया है. Next one is the firm has multiple choices of sources of financing. So एक firm को बहुत सारे ज़्यादा choices होना
बहुत ज़रूरी है फॉर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। अगर ये नहीं होता है तो फिर बहुत ही अनक्लोज्ड वाला बिजनेस हो जाएगा जहाँ पे उन लोग को मौका नहीं मिलेगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ताकि उन लोग फाइनेंस डिसीजन, साउंड फाइनेंस डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट वन इज़ द फर्म कैन चूज़ वेदर इट वॉन्ट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। अभी इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा छोटे पार्ट में बताऊंगी क्योंकि ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा फुल फ्लेज आएगा डिटेलिंग में। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं शेयर करके बार बार बोल रही थी। सो शेयर इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ टाइप्स ऑफ शेयर्स आर प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स बोला जाता है ओनर्स शेयर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले। ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन इसको सिर्फ इतने नाम से बोला जाता है कि इक्विटी कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, योर ओन कैपिटल, आपका खुद का कैपिटल, ठीक है। एंड डेब्ट कैपिटल का मतलब है, डेब्ट का मतलब एज अ कॉमन स्टूडेंट यू मस्ट नो द टर्म डेब्ट मीन्स बोरोड फंड। जैसे डिबेंचर्स आ जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाता है, जहाँ पे कंपनी ने सामने वाले से पैसे लिया, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी हैज़ टू रीपेड दैट विद द इंटरेस्ट और विद द एक्सेट्रा, लाइक प्रॉफिट के साथ उसको सामने वाले को पे करना पड़ता है, उसको बोला जाता है डेब्ट कैपिटल। मतलब डेब्ट इन द सेंस आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, समझ जाओ, आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिया है। उधार का मतलब क्या होता है? उधार का मतलब डेब्ट होता है, यानी कि आपको एक ना एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे भी करके चुकता करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि आपने दिया था मैं भूल गया, यू कैन नॉट से दिस, ओके। हाँ, अगर आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है, 10,000 क्या 10 लाख भी दे देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैन दिस दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन बिज़नेस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बिज़नेस में इमोशंस नहीं होते हैं, बिज़नेस में प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। एंड 1 रुपये भी इधर उधर जाएगा तो उन लोग सोचते हैं कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। 1 रुपये अगर मैंने यहाँ पे मार्केट में घुमाया तो मुझे 1.25 रुपये मिले, ये इंटेंशन लेके सबके सब क्या करते हैं, बिज़नेस करते हैं कैपिटल मार्केट में, ओके। सो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी कैपिटल इज़ कॉल्ड एज अ ओन्ड कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल इज़ कॉल्ड एज बोरोड फंड, जो एक ना एक दिन आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फर्म को, जो फर्म जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है ऊपर देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन, सो ये थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंसेस देना पड़ेगा। एक फर्म को बहुत ही सिलेक्टिवली चूज़ करना पड़ेगा रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स में उसको चाहिए पैसा या डेब्ट कैपिटल में चाहिए, क्योंकि इक्विटी कैपिटल में आपको लास्ट में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो देगा या नहीं देगा, ओके मतलब कैपिटल होल्डर्स को, इक्विटी कैपिटल होल्डर्स को। लेकिन एज अ डेब्ट कैपिटल अगर आपने लिया है, लाइक इशूइंग बाय डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स जिसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको आपको तो देना ही पड़ेगा। सो ये पर्टिकुलरली 2 डिसीजन रहता है जो एक फर्म को बहुत ही ईमानदारी से सोच बूझ के इंटेलेक्चुअली डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ फर्म कैन इवन ऑप्ट for bank loans, public deposits, debentures etc. to raise funds। जैसे कि firm if they want finance तो वो बैंक लोन भी ले सकता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स जैसे कि मैं बोल रही थी इससे पहले, डिबेंचर्स जैसे कि मैं बोल रही थी इससे पहले, और इस तरह से वो अपना फंड्स का बंदोबस्त कर सकता है। The last one is the finance manager ensures that the firm is well capitalized। Capitalized का मतलब है capital। The money which is invested in the business is known as capital। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में पढ़े हैं सारे टर्म्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड का मतलब है कैपिटल फंड, ठीक है। जो मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में उसको बोला जाता है कैपिटल, और कैपिटल में जो फंड्स ऐड होते हैं ना बच्चों, उसको बोला जाता है कैपिटलाइज्ड,
okay, so that they have the right amount of capital and that the firm has the right combination of the debt and equity. combination of what? debt and equity. मतलब एक फर्म को दोनों साइड से फाइनेंस की ज़रूरत मिल सकती है या हो सकती है, करवा सकता है. एक रहेगा इक्विटी एंड एक रहेगा डेब्ट, जैसे कि हम लोग ने थर्ड वाले सी वाले पॉइंट में देखा था. ठीक है, सो आई गेस यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स. आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे मेरे एक्सप्लेनेशंस विद दिस वीडियो, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली वॉट इट इज़. हर एक पॉइंट में मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ और प्लीज़ आप ध्यान दीजिए जो भी सुन रहा है मुझे. नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इन अ डिफरेंट फॉन्ट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट मैंने यूज़ किया है. आई एम सॉरी. कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. मतलब कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड इक्विटी शेयर्स. ठीक है, एंड इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड. इशूड का मतलब क्या है? आप इशू कर रहे हो. ठीक है, एंड ट्रेडेड का मतलब क्या है? आप सेलिंग एंड बाइंग समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रेडिंग. सो ये जो हो रहा है वो कहाँ पे होता है ये सारी चीज़ें? यस, एग्जैक्टली कैपिटल मार्केट में होता है. सो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ में इक्विटी शेयर्स क्या किया जाता है? इक्विटी शेयर्स का डीलिंग होता है, लाइक ट्रेडिंग होता है. ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग. ओके, सो मुझे लगता है ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया है. अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आया है, यू आर फ्री टू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड टू ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ सबोनी धारा, so that I can give all the videos related with your syllabus. क्योंकि ये not only for like my students, it is for everyone. You can get the information. और जैसे कि ये पर्टिकुलर चैनल वर्तक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बेसिकली मैं आपको सारे अपडेशंस यही चैनल पे देने वाली हूँ regarding SP and OC. So that is the only reason I will going to give you some few tips also, how to write brief questions, what are the format of it, how to write, how to present it and how much time you should need it. ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉरवर्ड करते रहूँगी एंड बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये करूँगी ताकि आप लोगों को एटलीस्ट 6 मंथ्स रहे हाथ में ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि वैसे ही फॉर्मेट अनुसार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, तो फिर एटलीस्ट बोर्ड एग्ज़ाम तक यू विल बी परफेक्ट. ओके, सो मैं यही चाहूँगी कि जो कोई भी मुझे सुन रहा है एंड मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो अप एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. कुछ भी डाउट्स रहता है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक डाउट सेशन इन गूगल मीट वेरी सून. ओके, सो दैट देयर विल बी नो इश्यूज़ एज सच. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक देख लेते, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अभी ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत प्यारा सा लग रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. मैंने बहुत अच्छा वाला PPT बनाया है जानबूझ के, ताकि मेरे बच्चे एंजॉय कर सकें. थोड़ा सा कलरफुल बनाया है मैंने. आई होप आप लोगों को अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है. आई एम सॉरी. नंबर फर्स्ट वन इज़, वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, the finance manager has to take decision regarding the use of funds in systematic manner so that it will bring maximum return for its owner. So what does it says? It's saying about कि बिजनेस फर्म एक बार उनको गेन्ड एक्सेस मिल गया ना कैपिटल के लिए, मतलब कैपिटल में एक्सेस मिल गया, परमिशन मिल गया, इन द सेंस द फाइनेंस मैनेजर has to take the decision regarding the use of the fund in a systematic manner so that it will bring maximum return to its owner. अभी ये ओनर कौन है? ओनर का मतलब है जो शेयर्स खरीदते हैं उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स. जैसे कि मैंने
पहले भी बोला था, बार बार चीख चीख के बोल रही थी, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर जो भी परचेस करता है उसको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। उनको और एक नाम से जाना जाता है, दैट द शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। क्यों बोला जाएगा, बिकॉज उनका पैसा कंपनी में लगाया हुआ है और कंपनी उनके पैसे के बदौलत रन कर रहा है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न they are called as owner of the company, they are called as the member of the company, they have a rights of meeting, okay, of raising the question in their interest। वो बिल्कुल मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सकते कि ये कैसा हुआ, इतना लॉस क्यों हुआ, इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ। सो दीज ऑल थिंग्स दे विल गोइंग टू आस्क बिकॉज दे आर द ओनर्स। अभी आप बताओगे, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस कंपनी धीरूभाई अंबानी का था, उनके सुपुत्र 2 थे, ठीक है, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। अभी उनके गुजर जाने के बाद, देहांत के बाद, इन दोनों ने बिज़नेस को संभाला बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से। अभी अगर आप लोगों को शेयर ख़रीदना है रिलायंस कंपनी का तो आप ख़रीद सकते हो। आप ख़रीदोगे एक शेयर 10,000 रुपये का, क्योंकि उनका रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसीलिए उनका एक भी शेयर 10,000 से कम नहीं होगा, मिनिमम मैं बोल रही हूँ। अभी तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया रहेगा या नीचे घटा रहेगा, लेकिन आपने अगर एक शेयर भी ख़रीदा वो रिलायंस कंपनी का, सो यू विल कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। बट हु देन मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, उन लोग प्रमोटर है, उन लोग मैनेजिंग डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन लोग। मतलब उन लोग का जो स्टेज है ना वो ओनर से भी ऊपर है, क्योंकि 60 to 70% उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिटर्न्स ओनर्स क्यों मांगेंगे। ओनर्स कौन होता है? ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं। सो एक फाइनेंस मैनेजर को हर एक डिसीजन इन्वेस्टमेंट के तौर से बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में लेना चाहिए, और उनको इस तरह से लेना चाहिए ताकि मैक्स टू मैक्स उनको प्रॉफिट मिले। किनको? ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को। दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, for this the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the fund in such a way that returns are more than the cost of capital. अभी cost of capital का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। cost of capital का मतलब है जैसे कि अगर मैं चाहूँ एक कोई भी कंपनी ओपन करना तो ऐसे ऐसे ओपन नहीं होता। हाँ, अगर मैंने बोला कि पान पट्टी का दुकान ओपन करना है तो वो तो 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा या 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी or an organization, for that purpose we need to take a lump sum cost, and for that reason it is very much important to take all the returns in a very proper way. हम लोग को ये देखना है कि कॉस्ट का मतलब है खर्चा। कोई भी कंपनी सेटअप करने से पहले या उनको फॉर्म करने से पहले हम लोग को कुछ खर्चा लगता है, लाइक रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार में जाना पड़ता है, और ऐसे करते करते एटलीस्ट 2 से 3 महीना जाता है कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए, क्योंकि लीगल सर्विस हम लोग कर रहे हैं, लीगल बिजनेस बना रहे हैं, तो लीगली सारे प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी में हम लोग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें होते हैं, तो हम लोग को कंपल्सरीली अटेंड करना पड़ता है। एंड ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग का रहता है। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर को देखना है कि ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए और रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा आए। लास्ट में यहाँ पे बताया है मैंने, थोड़ा सा बोल्ड में मैंने बताया यहाँ पे
राइटिंग भी अलग की है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स. सो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, मतलब कम से कम कैपिटल का कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि खर्चा कम होना चाहिए. एंड रिटर्न इज़ एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स, यानी कि रिटर्न्स का मतलब है प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट होगा. कौन करेगा, इन्वेस्टर्स करेंगे. ओके, सो विद दिस आई हैव डन विथ माई लेक्चर टुडे. आज मैं इतना ही सिखा रही हूँ एंड कल मैं फिर से आऊँगी. एंड उससे पहले आई रियली वॉन्ट डाउट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस लेक्चर. So thank you so much and don't forget to subscribe my channel and get the thumbs up ready for my videos. Ask the doubts in the comment box. Okay, and if anything else you want more, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना है तो वो भी मुझे बता दीजिए कि उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं ट्राई करूँगी आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए. सो स्टे विथ अस. थैंक यू so much. Have a nice day. Good day. Bye. Take care. Stay home. Stay safe. Bye bye.